friends. Hope you all enjoyed the film screening, The Walnut Tree. Now we have director of the film, Mr. Amar Aziz, with us from Lahore to answer our questions. Please put your questions in the comment box on the film. We will take your questions with Mr. Aziz. Amar. Welcome to our platform. Thank you so much. बहुत शुक्रिया Harsh. It's a great pleasure and an honor to be a part of this festival. And I think it's really great that you managed to bring so many amazing films from South Asia, and you managed to pull off this digital festival. So I'm really happy. Thank you, Amar. I just wanted to ask you, in this film you have shown the plight of internally displaced people termed as refugees who have been displaced by their own people within their own country from their own place by violence and oppression. जी. Basically, it is about an internally displaced old man reminiscing about a distant homeland. जी. Why have you named this film A Walnut Tree? Why have you named it after a tree? बिल्कुल, बिल्कुल. Actually, the film follows the story of a Pashto poet who was residing at this camp called Jallozai camp. It's apparently the largest refugee camp in Asia, and it was started for the Afghan refugees back in the 90s, late 80s, and now people from other parts of Pakistan, because the Afghan refugees have they no longer live in the same in the camp. So now people from other parts of Khyber Pakhtunkhwa who have been displaced because of the ongoing conflict between the Taliban and the armed forces. They live there. So one of his poems, he wrote for his father. The poem is called Walnut Tree. So the film is named after that poem. So you yourself is a poet, and the lead person, the old man Baba, is also a poet in the film. So is there any connectivity? देखिए बिल्कुल मैं थोड़ा सा अगर आपको I'll answer to this question, but before that I think it's important to also know the context and the background of this project and how it started shaping up. Also because आपका जो festival है, it's a South Asian Right. festival, so the film is a collaboration between Pakistani and Indian creative professionals, right? The film was produced by Mr. Rahul Roy. It was a part of a regional a project called the Justice Project, in which five filmmakers and 10 researchers were engaged from the SAARC countries, excluding Afghanistan. And then we also edited the film in Mumbai. And Khushbu Agarwal, she's a Mumbai-based film editor. She edited the film. So it's a very I mean, Collaborative. it's not really a Pakistani film in that sense. Yes, it's a Pakistani film because I have the rights and it was made The here. story is But about it's a Pakistan. it's a it's a collaboration between Right. the two countries. And at this moment, I would also like to express my solidarity with Rahul Roy and Sabha Devah, because they're facing Yeah. something is going on. And so anyway, to answer your question, yes, there was a connection also because my grandparents, they migrated from that side of the Punjab to this side, right? So when I went there and started spending time with this family, we immediately felt this connection, because we also grew up listening to the stories of the migration and the pain. There was a lot of nostalgia that my grandparents, they talked about, all their lives. So I had this very personal kind of a connection with this family and also with other people at the camp, because वो भी अपने घर के बारे में, अपने वतन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं. और तो ये सब चीज़ें थी. और आहिस्ता-आहिस्ता हमने कोशिश की. वी स्पेंट ऑलमोस्ट 18 months there back and forth, and then we spent almost 1 year editing the film. So it was
Uh, it took us almost 3 years to make this film. So, Supriti, you want to ask anything? Yeah, sure. Definitely. I have a lot of questions I want to ask. The first thing I want to ask you, जब आप उस रेफ्यूजी कैंप में गए तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जी. पर उसमें से एक ये जो बाबा हैं, जो उस्ताद हैं, उन्हीं की स्टोरी डिपिक्ट करनी है, ये कैसे सोचा आपने? What attracted you to him? You're right. जब हम वहाँ पर गए तो हम लोग initially we were spending time with 3 different families, and the idea was to kind of to come up with a film which is an essay style film, representing 3 families and people of different age groups. Lekin, there was something about this family, and we kept going back to them. We had very good access with them, and um, kuch also because this person was a poet, as Harsh pointed out, and he was very sensitive. और हमें ये एहसास हुआ कि बहुत कुछ है वहाँ पर जनरली लोगों के पास कहने के लिए, और आमतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ जाकर काम करने में, या उनको उनको रिप्रेजेंट करने में, उनको उनकी कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाने में. तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो दे वांट टू रीच आउट. तो हमें जब ये वी स्पेंट मंथ्स एंड मंथ्स ओवर देयर, एंड देन इवेंचुअली जब हम इसको एडिट कर रहे थे, हमने सोचा कि यार हमें ज़रूरत नहीं है बहुत सारा कुछ दिखाने की, जिस तरह से आमतौर पे सोचा जाता है डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में कि शायद बहुत सारे लोग जर्नलिस्टिक स्टाइल है कि आप अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहे हैं या मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं. हमने सोचा कि ये एक ही शख्स की कहानी से ये बात हम पूरी पहुंचा पा रहे हैं, सो वी डोंट रियली हैव टू काइंड ऑफ drag it and include other things. जब हम तो ये, I hope I answered your question. Yeah, definitely. And I can also see some of that because it seems like a very complete story. जो आपने एक ही शख्स को लेके उनकी पूरी फैमिली के साथ जब आपने बातचीत की, it shows the trauma of each member in the family. मुझे बहुत मतलब it's very sensitive and it really touches you when you see कि जब एक वो लास्ट में एक सीन है ना, जब बाबा रोने लगते हैं और फूट फूट के रो रहे होते हैं और कहते हैं मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है. उनकी जो छोटी सी एक बच्ची वहां पे बैठी हुई है, उसकी नाक बह रही है और वो रोटी तोड़ के खा भी रही है, और वो बार बार ऐसे देख रही है कि ये क्या, ये क्यों रो रहे हैं. तो एक इनोसेंस जो बच्चा एक हमारी जिंदगी में लेके आता है, वो भी कवर हुआ. और सबको देखने को मिलता है कि क्या खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है खाने के लिए उनके पास, मतलब सिर्फ एक वो रोटी ही तोड़ रहे हैं. और उनके जो बेटे हैं, उनका जो डायलेमा है, हाउ टू मैनेज द सिचुएशन एंड द सेंसिटिविटी ही हैज टू हिज फादर. एंड देन जो घर की औरतें हैं वो भी बड़ी दबंग हैं, मतलब वो दे आर नॉट डोसाइल विमेन. जब उनकी आपने स्टोरी दिखाई कि वो कहती है कि ये क्या, इतना इन लोग को मारने का शौक है तो एक मैदान में ले जाओ और वहां पे सबको मार डालो जिसको भी मारना चाहते हो ना. इनोसेंट लोगों को क्यों आप इस तरह परेशान कर रहे हो? तो मुझे ऐसा लगा आपने इतनी एक पुख्ता फिल्म बनाई है कि एक ही बंदे की स्टोरी के थ्रू आपने हमको पूरी स्टोरी जो है बहुत खूबसूरती से दिखाई है. तो मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ, आप जब ये शूट कर रहे थे तो बाबा ने आपको और भी कोई पोइट्री सुनाई थी? जी बिल्कुल. पहले तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी पजीराई की और इतने ध्यान से और इतने प्यार से इस फिल्म को देखा, क्योंकि यही मकसद है कि ये एक वो इमोशनल ट्रूथ कैप्चर करना मेरा ख्याल है मकसद होना चाहिए किसी भी फिल्म मेकर का, स्पेशली जब आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं.
तो कई दफ़ा आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा होता है, तो आपको ये भी खौफ होता है कि कहीं तब जिस तरह से हम हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह पॉवर्टी पॉर्न या बहुत ज़्यादा यू ट्राइंग टू सेल समबडी एल्सेस मिजरीज टू इन ऑर्डर टू मेक समथिंग, तो वो उन सब चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और जिन दो सिचुएशंस की आपने बात की, वो इसलिए भी पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पश्तून कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं, जिस तरह से किसी भी कल्चर के बारे में होते हैं, पंजाबीज के बारे में भी हैं, बंगालीज के बारे में भी हैं। तो पश्तून्स के बारे में एक तो ये है कि पश्तून men are supposed to be really strong. They never cry. You raise your boys like this. So it's a very patriarchal culture also. So in that moment when he breaks down and we see him crying, so actually you kind of defy that stereotype, and you humanize this person. He's a real person. He's not supposed to carry on the legacy of his वो जो patriarchal culture है. Similarly, ये एक दूसरी बात ये है कि women are inferior in the Pashtun society. ये हमें देखने को या मीडिया में जो पोर्ट्रेयल देखने को मिलता है वो ये है कि इनकी शायद कोई अपनी आवाज़ नहीं है औरतों की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें वहाँ जाकर ये एहसास हुआ कि women are very strong. Yes, there are some cultural things that you and I might not appreciate because we live in different cultures. लेकिन वो आपको दूर से देखने में कुछ और नज़र आ रहा है, करीब से जाकर देखने में कुछ और नज़र आ रहा है। और हाँ, बाबा ने बहुत सारी अपनी शायरी, बाकी चीज़ें भी शेयर की, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम नहीं शामिल कर सके फिल्म में, so there's I think at the end of the day it's a very difficult decision when you have a lot of material and how do you want to edit it. So wo I'm very thankful to our editor Khushbu. She I think did a very good job, and I had such a good time in Bombay. Amar, how long did you take to do the research at refugee camp? And was it difficult to convince Baba and his family to cooperate during the shoot of the film? It wasn't very difficult, to be honest, because as I said earlier, people want to talk to you. When you go there, the media is not going there anymore. Nobody's writing about them. They have been living there for so long. So there's this desire, that you feel in them to reach out, and to share their stories. It took us almost a year to research and write, and then we started shooting slowly and gradually. I want to hear from you about some of the celebrations that the family had in the middle of all that poverty, doom and gloom situation जो थी उनकी, उसके बीच में भी वो जो घर की लेडीज हैं वो कहती हैं बच्चों को, आओ मैं तुम्हें सजाती हूँ, मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाती हूँ, है ना, मतलब या बाबा जैसे पोइट्री पढ़ते हैं, या उनका बेटा कहता है कि आपको जरूर जाना चाहिए एक पोइट्री सेशन में क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, मूड चेंज होगा, है ना। तो आई वॉन्ट टू हियर अबाउट सम ऑफ द नाइस थिंग्स। मतलब जब हम ये सब सुनते हैं तो इतना खराब लगता है कि इतनी गंदी सिचुएशन है, ये किसी को इस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, मगर इन लोगों ने कैसे उस सिचुएशन में भी अपने आप को संभाला और अपनी लाइफ को कैसे सेलिब्रेट किया, ऐसे कोई ग्लिम्पसेस होंगे आपके पास? इफ यू कैन शेयर सम ऑफ दोस। I think you have seen them, most of them in the film, but there were many other things also, some personal moments also that we did not include. For example, how they would ईद के दिन में जब जिस तरह से उनकी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि ईद पे किस तरह से हमें, क्योंकि आपको देखिए हम जब हम रेफ्यूजीज, ये वर्ड हम सुनते हैं कि कोई रेफ्यूजी है, तो हमारे जहन में शायद यही बात आती है कि मिजरेबल समवन हु इज लिविंग इन अ मिजरेबल कंडीशन एंड ऑल दे नीड इज फूड। एंड द यूएन एजेंसीज और ये सारा जो UNHCR और ये सब अदारे जो काम कर रहे हैं, आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू रियलाइज दिस कि उनको खाली खाना या शेल्टर नहीं चाहिए, उनकी जो नीड्स हैं वो इससे बियॉन्ड हैं, जिसको हमने बहुत ही सटल तरीके से क्रिटिसाइज भी किया
फिल्म में, बिकॉज व्हेन यू सी द फिल्म एंड यू नो जहाँ जिस घर में जिस शेल्टर में खैमे में वो रह रहे हैं, आपको वो लोगोस हर जगह नजर आते हैं, यू नो हाँ, एवरीथिंग रिमाइंडिंग यू कि यू दिस इज नॉट योर होम, यू डोंट बिलोंग राइट। हियर। तो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि भाई ये सब लोग जो हैं, ये इनकी माजी में, पास्ट में, दे हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ, they are peaceful people, they had beautiful homes, they used to be very happy, you know, and now when because of this conflict they have been displaced, so you know they need more than this atta and chawal and ghee, whatever, right? They need love, they need affection, they need to be seen as human beings. तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी हम लास्ट ईयर a couple of years ago I visited this huge refugee camp in Iraq, दुहोक के करीब, और कोइंसिडेंटली वो उस दिन ईद का दिन था, और मेरे जहन में यही था कि यार ये इराक है और ये कैंप इतना, मतलब इट्स नॉट अ सेफ एरिया टू बी इन, और साथ ही कुछ ही फासले पर आपको वो बहुत ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और पूरा वर्ल्ड मीडिया उसको कवर कर रहा है। लेकिन वो दिन मैंने वहां जब गुजारा तो मुझे ये एहसास हुआ कि हाउ सिमिलर यू नो द पीपल आर, यू नो, चाहे वो जलोज़ई कैंप हो, चाहे वो इराक का वो दुहोक का वो रेफ्यूजी कैंप हो, लोगों की जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो सेम हैं, and they need more than you know there is something, you know, which makes them feel human, which is not necessarily their ये जो आप उनको एड दे रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको उनको एंगेज करने की जरूरत है एक पर्सनल लेवल पर। हमारे एक लाइक सुप्रीति, एक जस्ट से व्यूअर का की क्वेश्चन है, श्वेता श्वेता राइट्स दैट शी सेज हैज बाबा बीन फाउंड नाउ? वी वर इन टच विद द फैमिली 2 साल पहले तक, उस वक्त तक तो वो ही हैडंट बीन फाउंड देन, so no, it's not been found yet. I just want to go back to one thing you said earlier कि घर में आपने वो जो UNHCR के लोगोस भी देखे होंगे, तो मैंने एक ही चीज नोटिस की थी, वो जो एक सीन है जब बाबा कहते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी चीज है जो कोई दे के गया था, वो आप खोल सकते हैं, तो and he gives you this tiny memory card which he has so carefully saved in his wallet. उस टाइम पीछे एक पर्दा था जिसमें UNHCR का लोगो लगा हुआ था, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये फिल्म मेकर ने जानबूझ के लगाया है, ये पहले से था? नहीं, ये देखिए बिल्कुल, जब आपको इस बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया, और वो भी आपको याद होगा जब वो एक आटे की बोरी लेकर जा रहा है उसका बेटा, उस पे भी आपको बड़ा सारा लिखा हुआ है USAID, फिर जिन मैट्स पे वो सो रहे हैं वहां पे भी लिखा हुआ है UNHCR, और इवन उसको जिस तरह से मतलब एम्ब्रॉयडरी जो है या एम्ब्रॉयडर्ड तरीके से भी वो लिखा हुआ है, तो वो इतने अगली हैं वो सारे लोगोस, वो हर जगह नजर आ रहे हैं आपको, और वो आपके लिए एक कंसिस्टेंट रिमाइंडर हैं कि भाई आप यू डोंट बिलोंग हियर, यू नो, वन डे यू विल गो बैक, या यू विल हैव टू गो बैक, एंड दिस इज नॉट योर होम। तो वो हमारा उस पे, बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर नॉट, दिस इज एन इंडिपेंडेंट फिल्म, एंड UNHCR को हम या किसी भी अदारे को, गवर्नमेंट को, या किसी, हम बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से या क्रिटिकल तरीके से हम देखना हमारा राइट है, और हमने देखा भी वो। तो बिल्कुल आपने सही कहा, वो ये सब एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं वहाँ पर उस कैंप में जो लोगों को ये बार बार याद करवाते हैं कि ये आपकी जगह नहीं है और आप यहाँ पे मेहमान हैं, या आप यहाँ पर, तो ये मेरा ख्याल है दिस हैज टू चेंज ऑल्सो, और आई होप द फिल्म। ये जो एक क्या कहते हैं कि एक दिल में एक कसक सी होती है ना कि हमको हमारी जमीन चाहिए, हमको हमें वहां जाना है जहां हम पैदा हुए, जहां हम बड़े हुए, जिसको हम अपनी जमीन मानते हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ा साउथ एशियन इमोशन है, मैं कहूंगी। आप चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, किसी भी देश में चले जाइए, ये सबके दिल में है कि मैं जहां से आया हूँ, मैं जहां से आई हूँ, मेरे को वहीं पे रहना है, जिस जगह को मैं अपनाती हूँ वहीं पे रहना है।
तो रेफ्यूजीज की तो ये हमेशा से ही प्रॉब्लम, हमने दोनों देशों में पार्टीशन के दौरान इसको बहुत पास से देखा है। अभी तक हम लोग उसका जो है उसके जख्म भरे नहीं हैं। जी। जी जी, उसका हम अभी तक इम्पैक्ट महसूस करते हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए या आवाम की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए? मतलब जैसे आपने कहा ना, इमोशनल नीड जो होती है लोगों की, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू तो किसी भी देश में चले जाइए, शायद वो कभी फुलफिल नहीं होगी, पर जो आसपास के लोग हैं अगर वो उनके साथ मिले जुले, उनको एक तरह का मतलब अपना बनाने की कोशिश करें उनके साथ। हमारे साउथ एशिया में तो गाना बजाना कितना चलता है, मतलब, है ना? तो उनके साथ में बैठें, बातचीत करें, उनके दर्द को समझें और उसको फिर थोड़ा सा उसमें से निकालने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक नीड्स आर वेरी बिग. What do you say? Are there any agencies which are doing that kind of work? Unfortunately, no. I don't know of any such organizations. Uh, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ को लेकर कोई वहाँ पर देखिए, जिस तरह फ़िल्म में भी एक जगह पे समबडी एक्चुअली सेड दैट कि हर चीज़ के लिए पैरासिटामोल या वो मतलब डिस्प्रिन जो है वो हर बीमारी के लिए वो दी जाती है। तो वो मेरा ख़्याल है कि दैट आल्सो सेज़ अ लॉट। हमारे कल्चर में क्योंकि थेरेपी या मेंटल हेल्थ के बारे में जनरली जो वो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो एक प्रिविलेज है, और हमारे कल्चर में हमारी वो बहुत सारी थेरेपी वैसे ही हो जाती है उस सेंस ऑफ बिलोंगिंग की वजह से। जो कम्युनिटी में हम रहते हैं और जो हमें प्यार मोहब्बत मिलता है, तो बहुत सारी हमारी इमोशनल नीड्स वहाँ से आती हैं। और जब आप किसी इंसान से वो छीन लेंगे, तो आप चाहे उनको किसी महल में जगह दे दीजिए, चाहे आप उनको ताजमहल में कह दीजिए कि आप यहाँ रह लें बाबा, लेकिन बाबा का जो वो आइसोलेशन का जो एहसास होगा या जो उसकी तन्हाई होगी, वो ख़त्म नहीं हो सकेगी। तो मेरा ख़्याल है कि वो, क्योंकि वो लोगों के साथ जुड़ी हुई है और वो जिस तरह से आपने कहा कि वो उस धरती के साथ, उस ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि हमारे कल्चर का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, और उससे आप इतनी आसानी से छीन नहीं सकते। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी जब हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आ रहे थे, तो वो बताते हैं कि व्हेन दे वर लीविंग they locked their homes and they kept the keys with them for many years, thinking that one day probably they will go back, and that day never arrived. तो ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, आई एम श्योर कि ये लाखों लोगों की सिमिलर कहानी है कि यहाँ से भी जो लोग जा रहे थे वो अपने घर छोड़कर गए, और वहाँ से जो लोग आ रहे थे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है या हिजरत है या अपने घर से बेदखल होना, ये एक बड़ा ट्रेजिक फिनोमेना है, और हमने साउथ एशिया में ये बहुत ही करीब से देखा है और अब तक महसूस कर पा रहे हैं हम। अ, अब तक उसके ज़ख्म जो हैं वो भरे नहीं हैं, अब तक वो उसकी पेन जो है वो हील नहीं हुई। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन लोगों की जो भी लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपने घर से दूर हुए हैं, उनकी आप उन इमोशनल नीड्स का भी ख़्याल रखें। और गवर्नमेंट को या उन इंटरनेशनल एजेंसीज़ को उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। खाली वो बिस्किट्स देने से या दू मिल्क पाउडर देने से वो उनके मसले ख़त्म नहीं हो जाएँगे। मैं एक इस सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है इंडस वैली, इसी इरादे से बनाया है जो हमारी साउथ एशियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हैं, फिल्म मेकर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें, नेटवर्क कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें, एंड मे बी वी गिव देम एक्सेस टू अ लार्जर मार्केट टू शोकेस देयर वर्क, or we present South Asian creative industry as a unified industry to outside world. So it will help us to strengthen our creative industry in South Asia. It will help filmmakers, musicians, all creative professionals to bring out more fantastic works. तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये बहुत ही आपने ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है हर्ष, और
क्योंकि हमारे यहाँ इतने प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं या दूसरे, कि हम बहुत इजीली काम नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, जितना जुड़ना चाहिए हमें वो नहीं जुड़ पाते। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डिजिटली तो अभी तक ऐसा नहीं है लकीली, कि कोई सेंसरशिप या इस तरह के प्रॉब्लम्स, आई होप कभी ना हो और हम इतनी आसानी से ही काम कर पाएँ। तो एक बहुत बड़ा गैप था, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं नज़र आ रहा था हमें फ़िल्म को लेकर, जो इन दोनों मुल्कों को जोड़े या बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को जोड़े। और आपने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, सफाज ने, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम मुकम्मल तौर पे आपके साथ हैं आज भी और आइंदा भी। हमारी कंप्लीट सॉलिडेरिटी और सपोर्ट आपके साथ है। और आई होप कि फ्यूचर में हम इसको ऑन ग्राउंड भी कर सकें। इंडस जरूर। वैली फेस्टिवल को हम दिल्ली में, लाहौर में, बेंगलोर में बिल्कुल, हम इसके चैप्टर्स कर सकें। यही इरादा है। अमर, आप खुद एक पोइट हैं, फिल्म मेकर होने के साथ साथ, तो आप किस तरह की पोइट्री लिखना या पढ़ना पसंद करते हैं? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरे पोइटिक इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो काफ़ी उर्दू में, हमारी पहले तो ट्रेनिंग हुई सारी, मेरे नाना भी शायर थे, हमारी फैमिली में काफ़ी उर्दू अदब के हवाले से काफ़ी लोग रहे। मेरी माय मदर शी आल्सो राइट्स इन उर्दू, बट मैंने जब ज़्यादा एक्सप्रेस करना शुरू किया, आई आल्सो स्टार्टेड विद उर्दू गज़ल, but now I'm writing more in English, free verse, which is also getting published now in different journals and publications. तो मेरे इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो बहुत वो सब मुख्तलिफ कल्चर से आ रहे हैं। वो उसमें बहुत ही स्ट्रांगली उर्दू अदब का बहुत ज़्यादा, बेशक ज़ुबान जो है वो अब अंग्रेज़ी है, लेकिन वो उर्दू अदब से मेरा ख्याल है कि बहुत ही डायरेक्टली मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ। और फिर ज़ाहिर है उसमें कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोइट्स भी हैं। और लेकिन बहुत ज़रूरी है, देखिए, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, क्योंकि आपका भी ताल्लुक एज़ एन एक्टिविस्ट या एज़ अ कल्चरल एक्टिविस्ट म्यूज़िक के साथ भी है। और आपको ये मालूम है कि क्लासिकल म्यूज़िक से भी हमारी बहुत मोहब्बत है। तो बहुत। मेरा ख्याल है कि सब चीज़ें जो हैं ये जुड़ी हुई हैं, और इन सबको हमें एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। ये कोई अलग-अलग डिसिप्लिन्स जो हैं ये अलग-अलग हैं, लेकिन इनमें कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं हैं। एक अच्छी फ़िल्म भी अच्छी नज़्म की तरह ही है, और उसका असर भी उतना ही होगा जितना एक ख़्याल गायकी में एक राग का असर होगा। तो मेरा ख्याल है एक बड़ी फ़िल्म अगर आपको उस तरह से नहीं इमोशनली आपको पे असर-अंदाज़ होती, तो शायद उसमें फिर कोई कमी है। जिस तरह से एक राग असर-अंदाज़ हो रहा है या जिस तरह से शायरी हो रही है। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली इन सब का मकसद जो है वो यही है कि वो लोगों तक पहुँचा जाए। जी बिल्कुल, मैं इनफैक्ट लाहौर आया था पिछली दफ़ा 2-3 साल पहले, तो आपने मुझे म्यूज़िक की एक महफ़िल ऑर्गेनाइज़ की थी, बैठक ऑर्गेनाइज़ की थी, और आपके बहुत अच्छे चुनिंदा क्लासिकल म्यूज़िशियंस को आपने बुलाया था। तो वो मुझे दिखता है, और आप अक्सर अपने घर पे बैठक करते हैं, म्यूज़िशियंस को बुलाते हैं, महीने में एक बार तो कम से कम आप करते ही हैं। जी, जी। तो आप लाहौर की क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस के बारे में अगर थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि इंडियंस को उतना पता नहीं है कि वहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है। बिल्कुल, जो जो पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, असल में तो वो हिंदुस्तानी क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत ही है। और जितने जो बड़े घराने हैं वो भी माइग्रेट करके आए थे। कुछ यहाँ के भी घराने थे जो यहीं पर पहले से मौजूद थे, जिस तरह कसूर घराना है या तलवंडी घराना है, जो पंजाब में, इस दिस साइड ऑफ पंजाब। लेकिन जिस तरह शाम चुरासी या पटियाला है, जिनके बड़े बुजुर्ग वहाँ से माइग्रेट करके आए। लेकिन उसका ताल्लुक किसी एक इलाके से या रीजन से नहीं है। मेरा ख्याल है वो जो फ्रेमवर्क है वो सदियों पुराना है। और वो अभी तक इसीलिए कायम है क्योंकि उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। तो वो जो राग हैं, बंदिशें हैं, वो ट्रेडिशनल चीज़ें, वो यहाँ पे भी वही गाई बजाई जाती हैं जो हिंदुस्तान में गाई बजाई जाती हैं। और हमारे यहाँ चूँकि स्टेट की तरफ से कभी भी बहुत ज़्यादा उसको पैट्रनाइज़ नहीं किया गया, तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं म्यूज़िशियंस के। लेकिन वो ओरल ट्रेडिशन जो है वो चल रही है, और उम्मीद है कि वो चलती रहेगी। सुप्रीति। मैं एक्चुअली थोड़ा सा फिल्म की तरफ वापस ले जाती हूँ श्योर, आपको। श्योर।
somewhere I feel sometimes कि जो films है as a medium of communication, जी it has always uplifted us from the misery that we are in. अभी एक सिंपल सी चीज है, आपकी फिल्म में जो बेटा है बाबा का, वो कैसे कमाते हैं, वो बायोस्कोप बच्चों को दिखाते हैं, उससे जो भी थोड़ा बहुत उनको आता है वो on selling balloons or whatever he is doing in the film. So, even for the very, very lowest economic strata, films is such a beautiful medium of communication, entertainment, passing time, which, I mean, it sort of transcends every level. कोई भी, आप अमीर हो आप गरीब हो, फिल्म देख के आप खुश हो जाते हैं. But theater, poetry, these can be little bit more, higher class. I think, I don't know, I may be wrong. पर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि फिल्म्स की जो रीच है वो इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसको हम कैसे और यूटिलाइज कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है और हुआ है, और हम लोग सब जो पाकिस्तानीज़ हैं, हमारा जो फिल्म कल्चर है या हमारी जो फिल्म सेंसिबिलिटीज़ हैं सब लोगों की, जनरली अवाम की, मैसेस की, वो इंडियन सिनेमा की वजह से ही हैं, बिकॉज वी ऑल ग्रू अप वाचिंग दीज फिल्म्स। और हमारे यहाँ क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही थोड़ी, और वो काफ़ी जैसे जैसे रिजीम्स चेंज होते गए, उनके अपने इंटरेस्ट बदलते गए, उसका असर पड़ता गया यहाँ की आर्ट पर भी, सिनेमा पर भी। 80s में कुछ और इंटरेस्ट थे स्टेट के, तो कुछ और तरह की फिल्म्स बन रही थी। 90s में वो कुछ और तरह का, अब रिसेंट पास्ट में हमें नज़र आता है कि कुछ और है। तो मेरा ख्याल है कि फ़िल्म को जो है ना, आज़ादी सही मानों में पाकिस्तान में अभी तक मिली नहीं है। बहुत ही इक्का-दुक्का फ़िल्म मेकर्स हैं या फ़िल्म्स हैं जिनको आप सही मानों में कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हैं। Otherwise, most of the films that you see, they are somehow or the other either supported by, the state institutions, या फिर अगर स्टेट ना भी हो तो उसमें बड़े कॉर्पोरेट्स या वो अदारे जिनके कुछ और कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, वो। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में ये सब भी हुआ, वहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन एक पैरेलल सिनेमा शुरू से उसकी बहुत ही बड़ी रिवायत रही है, और वो साइड बाय साइड चलता रहा है। मतलब बॉलीवुड, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने कभी उसको तंग नहीं किया, उस पैरेलल। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तंग नहीं किया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा बढ़ने भी नहीं दिया, बढ़ने भी उसका नहीं दिया। मजाक उड़ाया, उसकी खिल्ली उड़ाई कि राइट, सारे राइट। टाइम ऐसे ये दिखा सिर्फ देते हैं। ये तो सिर्फ वो आर्ट तो हाउस हमेशा वो है। जंग हाँ, जो है इन दोनों के रही बीच में थी, रही रहती। बिल्कुल, वो जंग तो रही, लेकिन एटलीस्ट उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन नहीं किया शायद उस तरह से। वो बन रही हैं अभी भी, वो हमें कम हो गई हैं या कम बन रही हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ फ़िल्म मेकर्स ने उस लाइन को ब्लर भी किया, जैसे नंदिता दास, आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल, कि अब उनका जो काम है वो उसी ट्रेडिशन से आ रही हैं, लेकिन साथ-साथ वो मतलब वो उसको आप कंप्लीटली आर्ट हाउस भी है वो, लेकिन साथ-साथ उसकी कमर्शियल वैल्यू भी है टू एन एक्सटेंट। मेरा ख्याल है कि वो लाइन कहीं न कहीं आपको ब्लर भी करनी पड़ी वहाँ पर, और वो उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन आपने ये सही कहा कि फ़िल्म जो है वो सही मानों में यहाँ पर अवाम के लिए, लोगों के लिए वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया रही है शुरू से। और लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से फ़िल्म्स अब बन नहीं रहीं। पंजाबी सिनेमा जो था वो बहुत पॉपुलर था पंजाब में, जहाँ मैं रहता हूँ। और भी कुछ है, मतलब पंजाब से हट के भी वो देखा जाता था कहीं पे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके बारे में ये इम्प्रेशन बना दिया गया कि शायद ये सारा, क्योंकि वो बहुत ही ऑर्गेनिक था। वो उसमें ज़ाहिर है वो कोई जो लोग वो फ़िल्म्स बना रहे थे, वो कभी उनको लिटरेचर से या फ़िल्म ग्रामर से उनका कोई लेना-देना था नहीं। वो बहुत ही मतलब आसानी से आज सोचा और कल बनाना शुरू कर दी, इस तरह से। और वो अमर, सेल्फ एक्चुअली प्लॉट। हाँ, इंडिया में भी ये तो बहुत कॉमन, जैसे आपने बोला कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा जी, या आर्ट सिनेमा कहते थे हम, तो उनकी जंग एक चीज पे बहुत होती थी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिनेमा।
जी है ना। तो जो कमर्शियल सिनेमा है वो कहते भाई हम तो चाहते हैं कि हॉल में जाएं और खुश होके आए, एंटरटेनमेंट है पर्पस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग पीपल एंड ऑल दैट। पैरेलल आर्ट सिनेमा ये कहता था कि हम चाहते हैं कि सेंसिटिविटी हम अवेकन करें एंड लोगों को एक फिल्म को एक मीडियम ऑफ चेंज के जैसे यूटिलाइज करें। आपकी सोच के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए बिल्कुल, मैं तो इसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ कि फिल्म का मकसद जो है वो मैसेस को किसी हद तक एजुकेट करना भी है, उनको अपलिफ्ट करना भी है। और आर्ट जनरली ये काम करती है। हमारे यहाँ लिटरेचर में भी जिस तरह आपको ये एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता था कि प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट था कि भाई लिटरेचर का मकसद ये है कि ये कोई सोशल चेंज, कोई रेवोल्यूशन लाएगा, और एक तरफ दूसरे आइडियलिस्ट या रोमांटिसिस्ट थे जो कहते थे कि नहीं, आर्ट का मकसद जो है ये सिर्फ ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करना है या उसको रोमांटिसाइज करना है। या तो मेरा ख्याल है कि वो दोनों ही अपनी जगह पर सही थे। मैं, अगर आप ये सवाल मुझसे 4-5 साल पहले करती तो मैं आई वुड हैव सेड कि नहीं, आर्ट फॉर द सेक ऑफ रेवोल्यूशन या आर्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज। मेरा ख्याल है ऑल आर्ट इज रेवोल्यूशनरी। यू नो, जो 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 आर्ट जिसमें इमोशनल ट्रूथ है या जो चीज़ आपके अंदर से निकल रही है वो है ही प्रोग्रेसिव, वो एसेंशियली प्रोग्रेसिव है। उसका प्रोपेगेंडिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो अब तो मुझे ये लगता है, ज़ाहिर है इसमें वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जिनको प्रोपेगेंडा के लिए स्टेट की तरफ, किसी भी स्टेट की तरफ से बनाया जा रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि एक शायर या एक पेंटर, एक फिल्म मेकर जो काम प्रोड्यूस कर रहा है, जो जिसमें उसका अंदर का सच बाहर आ रहा है, तो चाहे उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो दैट पीस ऑफ आर्ट इज अ प्रोग्रेसिव पीस। क्योंकि हम दुनिया की हम लॉज चेंज कर सकते हैं, हम लॉ चेंज कर लें भले ही, लेकिन लोग तो फिर भी वही करेंगे जो वो बिल्कुल। करना चाहते हैं। तो जी कुछ तरीके होने चाहिए कि कुछ चेंज लाने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। फिल्म्स का बहुत जो आउटरीच है, उसकी वजह से मुझे लगता है ये काफी पॉसिबल होता है। मैं बिल्कुल। आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहती हूँ। जो मुझे बहुत, पूरी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने देखी तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि जो बाबा के बेटे हैं, उनके दिमाग में तो कितना चल रहा होगा, क्योंकि ही इज द मैन ऑफ द हाउस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज फैमिली, है ना। उनके पास काम करके कमाने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं। ऊपर से उनके फादर जो बार बार जिद कर रहे हैं कि मुझे वहां जाना है। तो वो जो बैलेंसिंग एक्ट था ना, टू कीप एवरीबडी इन गुड ह्यूमर एंड मतलब make everybody feel safe, peaceful, happy, एट द सेम टाइम उनके अंदर तो कितना चल रहा होगा कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं क्या करूँ, है ना। आई जी मीन इफ यू कैन शेयर समथिंग, सम इनसाइट्स अबाउट हिम। बिल्कुल। वो एज यू सेड, ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही वाज ट्राइंग टू, यू नो, मेक थिंग्स वर्क डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स। बच्चे भी हैं, सारा कुछ है। जिस तरह से किसी भी हमारे पेट्रियार्कल हाउस होल्ड में ऐसा ही होता है कि द मैन ऑफ द हाउस, यू नो, ही इज द वन। लेकिन साथ साथ वो जो ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्राइसिस और द ट्रेजेडी दैट हिज फादर वाज गोइंग थ्रू, यू नो, व्हिच वाज मोर mystical, and it was very emotional and personal. You know, he was coming from a space within. You know, he wanted to go to a place which doesn't exist now. So मेरा ख्याल है ये बात समझना बहुत मुश्किल था, सिर्फ उनके बेटे के लिए नहीं, सभी के लिए। तभी तो उनका कोई दोस्त नहीं था। सो आई थिंक ही ओनली फाउंड पीस व्हेन ही इंटरेक्टेड विद द किड्स। So that's why he was teaching voluntarily, बच्चों को पढ़ा रहे हैं बच्चे। Also because he was a teacher and he taught for यस। many years. तो मेरा ख्याल है बच्चों के साथ उनका वो सही मानों में ना, he also somehow he was a child, you know, and he, and you could see that whenever he spoke to the kids, and uh,
तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ये वही जिस तरह से मैं आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बट कि खाली आपकी जो खुशी है वो उसका ताल्लुक उस एड के साथ या उस शेल्टर स्पेस के साथ नहीं है, उस फूड के साथ नहीं है दैट यू ईट, यू नो देयर इज समथिंग मोर व्हिच मेक्स अस ह्यूमन. I was saying कि बाबा is a very emotional person. वो शुरू में ही दिखाते हैं ना कि उन्होंने कहा कि मैं ये भी कर सकता था, वो भी नौकरी कर सकता था अपने दोस्तों के जैसे, पर मैंने बिल्कुल सोचा बिल्कुल. कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ जी हाँ, जी क्योंकि हाँ. मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, कुछ बिल्कुल सेंसिटिव बिल्कुल. बनाना चाहता हूँ. तो बिल्कुल. उनके दिल में वो शुरू से ही था. तो that was very beautiful. I mean, we can, when we watch the film ना, बहुत दर्द महसूस होता है कि जो उनको उस टाइम महसूस हो रहा होगा ना अंदर जी हाँ, जी कि हाँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, वो जी आपने हाँ. बहुत अच्छे से दिखाया. बहुत मतलब शुक्रिया सुप्रीति. आई एम वेरी shot. हैप्पी कि आपने इतनी प्यार से और इतने ध्यान से ये फिल्म देखी, क्योंकि आप तो बहुत सारी फिल्म्स और भी देख रही हैं, और जब एक फेस्टिवल का आप हिस्सा होते हैं आप बहुत सारी फिल्म्स देख रहे होते हैं, बट यू डोंट नेसेसरीली रिमेम्बर द डिटेल्स, बट आपको बहुत ही वो सब डिटेल्स भी याद हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही है. और इसलिए भी ये स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि although the film has been widely screened all over the world, you know, in some of the leading festivals, लेकिन हमें यहाँ पे पाकिस्तान हिंदुस्तान में ज़्यादा दिखाने का मौका नहीं मिला. We had a screening in Delhi actually in 2015, but then after that I think we could not manage another one. You know, I couldn't come. There was another screening in Bangalore at some point, लेकिन मेरा कभी इंटरेक्शन भी नहीं हुआ. और वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये फेस्टिवल और ये इनिशिएटिव, क्योंकि सही मानों में हर्ष, आपने और आपकी बाकी सब टीम ने वो एक समथिंग न्यू, यू नो, इज इवॉल्विंग, आई कैन सी. एंड आई होप कि ये ग्रो करेगा आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें और भी लोगों को मौका मिलेगा. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिसमें हम लोगों को कनेक्ट कर सकें हमारे देशों में, हमारी कंट्रीज में. What is the next project you are working upon? I actually recently completed another feature-length documentary film. It's called Discount Workers. It was just released earlier this year in Prague at One World Film Festival. It's about you know, this factory fire in Karachi that killed over 260 workers, and they lost their lives, and they were making clothes for a German clothing brand. So it's a film about their struggle, the struggle of their families. And now I'm not working on. I'm just developing a couple of ideas, and I'm not sure कि क्या करना है. I'm just taking a break, but let's see. Acha, so before we end, if you can recite a poetry of yourself, that will be perfect ending for this. Unfortunately, I don't have anything right now in front of me. अच्छा. हाँ बिल्कुल, मुझे वो but maybe I can record something and I can send it to you later. जरूर. I And you can recently read a poetry of yours you posted on Facebook, but I don't remember an English poetry which you wrote. जी बिल्कुल. There were a couple of them which were recently published in poetry at Sangam. Sangam is a very prestigious. I think Bangalore में ही तो है Sangam House. आप बैंगलोर में हैं सुप्रीति? मैं बैंगलोर में हूँ. हाँ. जी जी. तो बैंगलोर में एक है संगम हाउस, इज अ वेरी प्रेस्टिजियस पोइट्री ऑर्गेनाइजेशन, और प्रिया जी जिसको चला रही हैं, शी इज़ अ वेरी वेल नोन पोइट, एंड उनका वो उनका जर्नल है पोइट्री एट संगम. वहाँ पे आई रिसेंटली पब्लिश अ साइकिल ऑफ 6 पोएम्स, एंड मे बी यू कैन शेयर द लिंक हर्ष. वो आपको वहाँ से मिल जाएगा. Sure. तो वो आप शेयर कर दीजिए. तो मैं हाँ बिल्कुल. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने के लिए, आपके वक्त का. और वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई once again a lot of well wishes for the festival. Thank you, Thank Amar. you. Thanks a Thank lot you, for joining Thank Supriti. you us. so much. Very lovely talking to you, Amar. Thank you. Thank you. Namaste. See you Likewise. again. Likewise. Bye. See you soon.